Student, how are you? Good morning to all of you. I think you will be happy at your home, and we are also same like you. So this is the suggestion. Take care yourself and your family, and caring after you should watch the videos which is provided by our school. It is very important, and we are lucky, and don't miss it and don't waste time. Now I want to tell you some facts. After watching the videos, you will understand the whole matter, which is very compulsory for the students of class 6, 7, 8. And after that, you will not fear in subject English, because you know English is an international language, and we can define it. English is the language of the people of England. It is also spoken to the other parts of the world. So very funny language, and this is linking language. It will help in many subjects like science, maths, and social science. If in this particular subject, if you will have any problem, then I can tell you will be repenting whole life. And in more subject, you will feel a lot of trouble, a lot of problems. So follow my suggestion and instructions. Slowly you will have to understand the previous videos, because without that you will not able to understand the whole theme and concept, and without concept you can't understand the language of the book, because it's so important, because grammar is the foundation of languages. So the definition, grammar is the foundation of languages, and we should maintain it, because this is the very important part of our study. So let us discuss on tense form. And yesterday I had taught you present indefinite, and today I shall teach you present continuous. So present indefinite defined by me, and you will have to follow the structure like subject plus first form, fifth form plus object. And I have cleared already this structure in the previous class. Subject plus first form plus fifth form plus object. Fifth form means S and ES form, and this is plain form. So we can express present indefinite in two ways. Number one, subject plus first form plus object, and number two, subject plus fifth form plus object.
Okay, you have to decide yourself this is object or complement, but here the focus, you will have to focus on verb form, and by the help of verb form we can analyze the sentence is taken from present indefinite or not. Clear? Just like मैंने एग्जाम्पल लिखा कि मान लीजिए the sun rises in the east. Sun rises in the east, fifth form of the verb. Fifth form of the verb. It's clear? It's clear? So हम कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है. क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. दूसरा एग्जांपल लिखा I teach you. And mark my point, this sentence is from present indefinite because the sentence takes first form of the verb. So whenever first form of the verb is given in the sentence, without any hesitation, I can tell the sentence is from present indefinite. So very easy, this is present indefinite. तो जब कभी भी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म किसी भी सेंटेंस में आपको मिले तो आप समझ लेना कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता. सो नो प्रॉब्लम. सो नंबर 2 वी शैल डिस्कस. दिस इज नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट continuous. By the help of structure, we have to estimate the sentence is related from present continuous or not, या present continuous से है या नहीं है. हमेशा हम लोग स्ट्रक्चर ही समझें और स्ट्रक्चर से ही बनाने की कोशिश करें. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस फोर्थ फॉर्म, दैट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. वर्ब में जब आईएनजी आप लगा दोगे तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखोगे. ठीक है, तो आप देखिए कि हमें रूल्स कौन सा यूज करना है. परफेक्ट स्टेप हमारे लिए क्या होगा. सो व्हेन एवर द सेंटेंस इज अटैच्ड विद विल अटैच विद सब्जेक्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम and helping verb after fourth form of the verb and fourth form after object is coming. That means you can tell very nicely the sentence is taken from present continuous. हाँ, बिना किसी हेजिटेशन के सब जगह जहाँ मर्जी वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा जो है सो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के आफ्टर बिफोर लेता है. अंडरस्टैंड? बिफोर में समझ गए ना, वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कुछ एग्जांपल हम देखते हैं. सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज. कैलकुलेट इंग्लिश सेंटेंस हैं, हम इसको किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से समझें कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस से है या कहीं और से है. तो सेंटेंस को ब्रेक करना सीखिए. सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस ब्रेक करने के बाद क्या क्या मिलता है. तो देखिए मैंने ब्रेक किया, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब इज है
ये हमने ब्रेक किया, ये फोर्थ फॉर्म है, रेस्ट पार्ट ऑब्जेक्ट में चला गया। तो आपका ये क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब कभी भी आपको सेंटेंस में मिले तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को छोड़ करके दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा हो रहा है तो आपका सोच गलत है, आपका स्टडी गलत है, आप गलत दिशा में सोच रहे हो। इसलिए आप फोकस करना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब सब्जेक्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद फोर्थ फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा। ओके, इट्स क्लियर। तो हम लोग इज कहाँ यूज करेंगे, आर कहाँ यूज करेंगे, एम कहाँ यूज करेंगे, ये सारा मैंने बताया था, आपको पता भी है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मैसेज डालना, इज आर एम। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इंग्लिश के सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे समझेंगे, तो स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। और सबसे पहला बात कि मैंने 2 सेंटेंस जो आपको पढ़ाए, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग बोल रहे हैं पकड़ने के लिए। व्हाई इट इज नेसेसरी, हिंदी में मैं इसको लिखाते क्यों नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज you are reading in English medium, so you will have to make habit how to improve your English. Understand? So logically, always you will have to analyze the sentence is taken from which part of the tense, and the structure will help you. Okay? Structure will help you. So I am writing here present perfect, subject plus had have plus third form plus object. Present perfect always take had have after third form. Whenever you will find had after third form या फिर हैव आफ्टर थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। She had finished her work. I have written, and the structure will be subject plus had plus third form plus object for present perfect, and break it firstly. This is not very difficult. It's not a major problem. Only you will have to operate the sentence, and operating after you will find subject, verb and other words, and after that we have to calculate. If once tally from the structure, then we can tell it very nicely, and the sentence will be from, had नहीं, have, present perfect, had have, so had, sentence will be from present perfect. sentence कहाँ से होगा फिर, प्रेजेंट परफेक्ट से होगा। तो आइए, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ये सेंटेंस ब्रेक करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज मिला, हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म, ये
ऑब्जेक्ट। जरा ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। we can write present perfect in two ways. Okay, number one, subject plus have plus third form plus object. Number two, subject plus has plus third form plus object. तो जब कभी भी आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो तो फिर आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा और होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड द सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? हैज और हैव का नोट हम लिख देते हैं, आप इसको फॉलो करना, समझ में आ जाएगी। आई, वी, यू, दे, more than one subject, more than one subject, always take have. Mark my point, very very important topic this is. I, we, you, they, more than one subject is equal to have. And number two, rest will take helping verb has. Rest will take helping verb has. That means rest is equal to has. We have to use. बट कंडीशन क्या रहेगा कि सेंटेंस हमारा कहाँ का होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है तो हम लोग हैज हैव आफ्टर थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हैज हैव आफ्टर थर्ड फॉर्म हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होता है। क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? नो। नेक्स्ट वन, नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Present perfect continuous. Once again, I shall try to estimate the sentence is taken from which part of the tense. So by the help of a structure, we can try to understand, we can analyze. So firstly, we should follow the structure. A structure will be subject plus has have plus been, B-E-E-N, plus fourth form of the word plus object plus since object for plus time. So once again I want to tell you, by the help of a structure you can find it, the sentence is taken from which part of the tense. So through example I will try to understand the sentence is taken from which part of the tense. Just like example, the teacher has been teaching English for 2 hours. 2 hours. The teacher has been teaching English for 2 hours. Listen to me. Has been after fourth form. क्योंकि टेंस जो है, सो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाय द हेल्प ऑफ वर्ब फॉर्म वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली. द सेंटेंस इज रिलेटेड फ्रॉम व्हिच पार्ट.
of the tense. So has been after fourth form जब कभी भी आपको मिलेगा तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, और हम इजीली कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये हैज है, बीन के बाद V4 है, V4 आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आफ्टर फॉर, सिंस और फॉर में से एक हमें यूज करना था, यहाँ फॉर होगा, और फिर टाइम दिया हुआ है। तो बड़ा आराम से हम कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सेंटेंस कहाँ से लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। और दूसरा टेंस का ये नहीं है, सिर्फ आप इतना ही समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये है। क्यों? क्योंकि इसमें हैज के बाद बीन आ रहा है सेंटेंस में, और उसके बाद V4 आ रहा है। दूसरा बात कि अगर हैज नहीं होगा तो हैव वाला सेंटेंस होगा। तो हैव वाला एक सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। I have been reading in this school since 1993। अब इस सेंटेंस में हैव का यूज कर लिया है, और इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया कि हैज का यूज आप कहाँ करेंगे, हैव का यूज कहाँ करेंगे। तो हैव के लिए दिया आई वी यू दे मोर देन वन सब्जेक्ट इज इक्वल टू हैव, और यदि ये सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो हम आंख मूंद करके हैज का यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो हैज हैव का यूज पता चल गया आपको। तो हमें यहाँ भी हैज हैव यूज करना है। तो द टीचर रेस्ट सब्जेक्ट में आ गए, इसलिए इनके साथ हैज का यूज किया हुआ है। क्लियर? अब आगे आते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ होगा, क्योंकि एक जगह सिंस यूज कर दिया हमने, दूसरी जगह फॉर यूज कर दिया। देखिए पहला सेंटेंस में कि पहला सेंटेंस में फॉर यूज किया है, दूसरा सेंटेंस में हमें सिंस का यूज किया है। तो क्या रीजन है, इस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि जहाँ मर्जी वहाँ सेंस नहीं यूज कर सकते, जहाँ मर्जी वहाँ फॉर नहीं यूज कर सकते, जहाँ मर्जी वहाँ हैज नहीं यूज कर सकते, जहाँ मर्जी वहाँ हैव नहीं यूज कर सकते। ऑलवेज वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सेंटेंस, इट्स इम्पोर्टेंट। तो हम सेंस और फॉर के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। तो नोट को ध्यान लगा करके देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, निश्चित दिन, दैट मीन्स डे दिया हुआ हो, निश्चित डेट दिया हुआ हो, ईयर दिया हुआ हो। तो ये सारे सर्टेन पॉइंट हो गए, और इस स्थिति में हम लोग सेंटेंस में सिंस का यूज करते हैं। जैसे हमने 1993, दिस इज द ईयर नेम। अब बताइए कि 1993 को आप 1992 कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 1994 कर सकते हैं? नो, क्योंकि ये फिक्स है 1993 तो 1993। इसलिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में। फॉर के लिए चलते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है फॉर 2 आवर्स, मतलब शिक्षक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब 2 आवर्स निश्चित नहीं है, इसको पीरियड कहते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। तो पीरियड क्या होता है, इसको अच्छी तरह से थोड़ा समझना है। अब शिक्षक 2 घंटे से अगर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं कक्षा में, क्लास में, तो 2 आवर्स एक पीरियड इसलिए होगा कि एक्यूरेट टीचर 2 आवर्स नहीं पढ़ाएंगे। या तो 2-4 मिनट इधर उधर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको दूसरे माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग खेलने के लिए जाते हैं तो घर में बोले कि ठीक है हम 1 घंटे में आ रहे हैं,
एक्यूरेट आप देखिएगा 1 घंटे में नहीं आएंगे। स्कूल का बेल लगता है 45 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 35 मिनट्स, कभी भी कहीं पर भी अगर 35 मिनट्स का पीरियड है तो एक्यूरेट 35 पे नहीं लगेगा। समझते हैं? नहीं लगेगा। इमेजिन करना है, इसको प्रैक्टिकल करके देखना, समझ में आएगा। तो उस स्थिति में इन दैट कंडीशन वी कैन यूज फॉर, otherwise we have to use since, and this is the difference between since and for. And since always takes point of time and for always takes period of time. Okay, thanks. 20 मिनट लगा।